Good morning, students. Today I am going to explain the chapter number 5, Surface Chemistry, Part 2. Now, the, we start true solution. What is true solution? क्या होता है solution? It is a homogeneous mixture, and the diameter of the particles of solution is less than 1 nanometer. 1 नैनोमीटर से कम होता है पार्टिकल का डायमीटर, एंड दीज पार्टिकल्स पासेस थ्रू द फिल्टर पेपर. जब हम सॉल्यूशन को फिल्टर करते हैं तो पार्टिकल्स फिल्टर पेपर से पास हो जाती हैं. इट्स पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन under the microscope because the size of particles are very small, and the example is when sugar is dissolved in water, it forms a true solution. Next is colloids. It appears to be homogeneous, but actually they are not homogeneous. It is a heterogeneous mixture. The diameter of the particles in the colloidal mixture is 1 nm to 1000 nm, and on filtration the particles are passed through the ordinary filter paper. But जो दूसरा फिल्टर पेपर होता है जिसको अल्ट्रा फिल्टर पेपर कहते हैं, उसके थ्रू कोलॉइड के पार्टिकल पास नहीं होते हैं, एंड द पार्टिकल्स कैन बी सीन बाय पावरफुल माइक्रोस्कोप. कोलॉइड्स के पार्टिकल पावरफुल माइक्रोस्कोप से दिखाई देते हैं, एंड ऑल्सो बिकॉज द साइज इज बिगर. नाउ सस्पेंशन. It is also a heterogeneous mixture, and the diameter of particles are larger than 1000 nanometer. इसमें पार्टिकल साइज काफ़ी बड़ा होता है, and they does not pass through the filter paper, and the particles can be seen without any microscope. हम इनको नेक डाई से भी देख सकते हैं. ये अनस्टेबल होते हैं, and some they settle down when we left for some time. तो and the next thing कि किसी भी कोलॉइड्स में दो तरह के फेस होती हैं. वन इज़ कॉल्ड डिस्पर्स्ड फेस, एंड डिस्पर्स्ड फेस इट इज़ द सब्सटेंस विच इज़ डिस्पर्स्ड एज वेरी फाइन पार्टिकल. डिस्पर्स्ड फेस किसी कोलॉइड का वो फेस होता है जस्ट लाइक सॉल्यूट, जिसको कि हम उसमें डिज़ोल्व करती हैं. एंड डिस्पर्सन मीडियम इट इज़ द सब्सटेंस प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी. जो ज़्यादा क्वांटिटी में सब्सटेंस प्रेजेंट होता है उसको हम कहते हैं डिस्पर्सन मीडियम. दैट इज़ कॉल्ड मीडियम. नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स on the basis of physical state of dispersed phase and dispersion medium. On the dispersion phase और dispersed medium के की physical state के according colloids का classification different होता है, and the classification of colloids on the nature of interaction between the dispersed phase and dispersion medium. It is the classification, then the classification of colloid on the basis of nature of interaction between the dispersed phase and dispersion medium. जो colloids का classification है, it is the important classification, and this is of two type. One is lyophobic salts, and lyophobic salts, these colloids are liquid hitting. ये क्या होता है, सॉल्वेंट या लिक्विड हीटिंग होती हैं, एंड इन दीज colloidal particles of the dispersed phase have no affinity for the dispersion medium. They are unstable
they are not stable and they can be prepared by mixing the substance directly. They need stabilizing agents for their preservation. स्टेबलाइजिंग एजेंट का मतलब है जब हम कोलॉइड को बना लेते हैं तो उसमें कोलॉइड की स्टेबिलिटी बनी रहे, इसके लिए हमें उसमें कुछ जो है एजेंट्स को, कुछ सब्सटेंसेस को ऐड करना होता है जिनको हम कहते हैं स्टेबलाइजिंग एजेंट, एंड दे आर इरिवर्सिबल इन नेचर, इरिवर्सिबल होती हैं. लायोफिलिक सॉल्ट्स, लायोफिलिक, दीज कोलॉइड्स आर लिक्विड लविंग, ये लिक्विड लविंग होती हैं, एंड इन दीज कोलॉइड्स द पार्टिकल्स ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज हैव द ग्रेटर एफिनिटी फॉर द डिस्पर्सन मीडियम. These are stable and they cannot be prepared by mixing the substance directly. They are prepared only by the special methods. इनको हम स्पेशल मेथड से बनाते हैं. They do not need stabilizing agents for their preservation. ये इनको स्टेबलाइजेशन के लिए किसी अदर सब्सटेंस की ज़रूरत नहीं होती है. एंड दे आर रिवर्सिबल, ये रिवर्सिबल होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि जो गम सॉल्यूशन है, अगर हम उसको हीट करें तो वाटर एवापरेट हो जाएगा, एंड व्हेन वी मिक्स द डिस्पर्सन मीडियम यानी कि वाटर अगेन, इट इज़ ऑल्सो प्रिपेयर्ड अगेन. नाउ द क्लासिफिकेशन ऑफ colloids on the basis of types of particles of the dispersed phase. अब ये कोलॉइड के पार्टिकल्स के नेचर पर डिपेंड होता है और दो तरह का होता है. वन इज मल्टी मोलिकुलर colloids, the colloids in which the colloidal particles consist of aggregate of the atoms or the small molecules. इसमें मल्टी मोलिकुलर में स्मॉल एटम्स होती हैं जो कि एक दूसरे से जुड़कर कोलॉइडल साइज के पार्टिकल्स को प्रिपेयर कर लेती हैं. एंड द डायमीटर ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स फॉर्म्ड इज लेस देन 1 नैनोमीटर. इनमें जो कोलॉइडल पहले पार्टिकल का साइज होता है वो 1 नैनोमीटर से कम होता है. मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स, these are the colloids in which the dispersed particles are themselves large molecules, बहुत large molecules होती हैं like polymers. Since these molecules have dimensions comparable to those of the colloidal particles, their dispersions are called macromolecular colloids, और उसको हम मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल प्रोटीन्स, स्टार्च, सेल्यूलोज, दे फॉर्म द मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स. मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड में जो पार्टिकल होते हैं उनका साइज काफ़ी बड़ा होता है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड्स. प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड्स. Number 1, the Brownian movement. The colloid particles move in zigzag path. ये zigzag path में इनका मोशन होता है, and this type of motion is due to the colliding molecules of the dispersion medium constantly with colloid particles. इसमें ये जो zigzag motion क्यों होता है? Because the particles they of the dispersed phase and dispersion medium collide to each other. ये एक दूसरे से कोलाइड करती रहती हैं. सेकेंड प्रॉपर्टी इज Tyndall effect. The scattering of beam of light by colloidal particle is called Tyndall effect. The bright cone of the light is called Tyndall effect. When any of the beam of light is passed
थ्रू कोलॉइडल सॉल्यूशन। कोलॉइडल सॉल्यूशन में से हम किसी बीम ऑफ लाइट को पास करते हैं तो वो पूरा पाथ जो है हमें वहाँ पर पार्टिकल्स जो है वो ग्लो करते हुए दिखाई देती हैं, एंड दिस इज़ कॉल्ड द टिंडल इफेक्ट, एंड इट इज़ द स्कैटरिंग ऑफ beam of light. Next is charge on the colloidal particles. The colloidal particles always carry an electric charge. Colloidal particles में कोई भी electric charge होता है, and the nature of the charge is the same on all the particles in of the colloids. एक colloidal solution में जितने भी particles हैं उन सभी के ऊपर सेम चार्ज होता है, आइदर इट इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव, एंड दे एब्जॉर्ब द चार्ज फ्रॉम द dispersion medium in which some electrolyte is present. Next is Helmholtz electrical double layer. ये क्या होती है Helmholtz electrical double layer? When the colloidal particle acquire एनी चार्ज नेगेटिव और पॉजिटिव, जब कोई कोलॉइडल पार्टिकल एक चार्ज को एब्जॉर्ब कर लेता है द बाय सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वन ऑफ द आइंस, तो इट अट्रैक्ट्स द काउंटर आइंस फ्रॉम द मीडियम एंड फॉर्मिंग द डबल सेकेंड लेयर। ये अपने मीडियम में से जिस चार्ज को एब्जॉर्ब किया उसके ऑपोजिट चार्ज को अट्रैक्ट करता है and form the second layer. The combination of these two layers of opposite charges around the colloidal particle is called Helmholtz electrical double layer. इसको हम Helmholtz electrical double layer कहते हैं. Next property is electrokinetic potential or zeta potential. The potential difference between the two layers of the colloidal particle, the fixed layer and the diffused layer of the oppositely charges is called electrokinetic potential or zeta potential. जब कोई कोलॉइडल पार्टिकल जिसके ऊपर एक तरह का चार्ज है और वो मीडियम से दूसरे ऑपोजिट चार्ज को एब्जॉर्ब करके दो लेयर बनाता है और दोनों लेयर के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है दिस इज नोन एज द zeta पोटेंशियल और इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल. एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज इलेक्ट्रोफोरेसिस. द मूवमेंट ऑफ द कोलॉइडल पार्टिकल्स अंडर एन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड टूवर्ड्स द ऑपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड्स इज नोन एज इलेक्ट्रोफोरेसिस. जब हम किसी कोलॉइडल सॉल्यूशन को इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखते हैं एंड सो दैट तो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो ऑपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ माइग्रेट करते हैं, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज इलेक्ट्रोफोरेसिस. एंड नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कोएगुलेशन और precipitation. Coagulation, the process of setting of the colloidal particles as a precipitate is called coagulation. कोलॉइडल पार्टिकल्स में जो पार्टिकल्स होते हैं ये स्टेबल रहते हैं एंड दे डू नॉट सेटल, बट व्हेन दे सेटल, जब वो सेट हो जाते हैं बाई एडिंग सम इलेक्ट्रोलाइट or by increase in temperature in the form of precipitate, this property is known as coagulation or precipitation. So we can say the change of the colloidal solution to the precipitate is known as coagulation or precipitation. अब precipitation is done by adding some electrolyte. अब जो इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं, now there is a comparison between the charge of the electrolytes. इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर जो आइंस होते हैं उनके चार्ज में एक कंपैरिजन होता है, एंड दिस इज़ गवर्न्ड बाय हार्डी-शेल्ज रूल. इसको हार्डी-शेल्ज रूल कहते हैं.
the oppositely charged ions are effective for coagulation. पहली चीज़ तो है कि जो कोलोइडल पार्टिकल्स हैं उनका कोएगुलेशन उसके ऑपोजिटली चार्ज्ड आयन से होता है. द कोएगुलेशन पावर of the electrolyte increases with increase in charge on the ions used for coagulation. जो कोएगुलेशन पावर है, कोएगुलेटिंग पावर कहते हैं इसको, कि कोएगुलेटिंग पावर ऑफ द ऑपोजिटली चार्ज्ड आयन ये इंक्रीज होती है एज द चार्ज ऑन द ऑपोजिटली चार्ज्ड आयन इंक्रीजेस. फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर कोई नेगेटिवली चार्ज सॉल है and we need the positively charged ion for coagulation, तो एल्यूमिनियम के ऊपर 3 पॉजिटिव आयन है, तो एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव होता है. सबसे ज़्यादा पावर एल्यूमिनियम आयन की होगी, देन 2 पॉजिटिव आयन, देन 1 पॉजिटिव आयन. एंड फॉर द पॉजिटिवली चार्ज्ड कोलॉइड्स, पॉजिटिवली जिसमें कोलॉइडल पार्टिकल पर पॉजिटिव चार्ज है, वी रिक्वायर नेगेटिवली चार्ज्ड ions for coagulation, and for this also the power of the negatively charged ion, जैसे CN आयन होता है फेरस साइनाइड, इसमें 4 नेगेटिव से और Cl1 नेगेटिव तक वो जो है कम होती जाती है. Cl1 नेगेटिव की कम होगी, वाइल जैसे फॉस्फेट आयन है, सल्फेट, इनकी उसके कंपैरिजन में ज़्यादा होती है. And this is all about for today. Thank you, students.